Okay, hi, namaskar, dear students. I'm so excited about today's webinar, and today we are going to discuss about the Australia and New Zealand direct work visa for the pharmacist. So, in today's webinar, we are going to cover pretty much everything that you require to know, and based upon that, you are going to make your decisions about the which plan is best suitable for your career selections. Okay, so before we start discussing further, we are still waiting for few more members to come, and by the time we should have to know about your um, situations and your experience levels. So, based upon that, we are going to make some sort of better delivery what you are expecting. Okay, तो स्टार्ट करने से पहले आप मुझे आपके बारे में कुछ बता दीजिए कि आपका एक्सपीरियंस लेवल क्या है फार्मेसी में. ओके, गुड 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 गुड. Okay, still we are expecting to get some more responses. Okay. Okay, so far is about 50% of the students, more than 50% students are in the category of the fresh graduates, and is a more than 5 years experience candidates are about 25%. Okay, so still we are expecting to get few more responses. Still few more responses we are awaiting for. Okay, perfect. So it's about 75% of the students in today's webinar are considered as a fresh graduates, and about 25% of the students are considered as experienced students. Okay, those who are the less than 3 years experience are also considered with the Australian perspectives, that also considered as the fresh graduates, because the less than 3 years experience is not counting towards your permanent residency calculations, and that's why we are not considering them as an experienced candidate. But those who have a more than 3 years experience, they have a significant different level of options available. Good. तो आज की वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले एक और पॉइंट्स भी देख लेते हैं. ओके, आप क्या जानना चाहते हो? पीआर एंड इमिग्रेशन के बारे में जानना चाहते हो, या यू आर मोर अबाउट द KPS एग्ज़ाम के बारे में जानना चाहते हो? तो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट टाइटल तो वही है कि डायरेक्ट वर्क वीज़ा का ऑप्शंस कैसे होता है. So we can cater the service to majority of the students, those who are participating in this session. Okay. Good, good. Still a few more responses to go. 76% of the participants, they are expecting to get about the PR and immigration related information they are looking for, and about 25% of the participants, they would like to know about the KPS exam. So don't worry, we are going to focus on the PR and immigration in much more in details, and also we can touch upon the KPS overview and process, so that can meet both the requirements. Okay, done. So at the end of the session, I will give you an opportunity to ask the questions, but when we move with the flow, I would like to discuss and provide all the informations in front of you, and at the middle, like today's session has been divided into 3 different parts. The first part is called the overview about the Australia. What is the Australian landscape specifically for the health science perspectives? In second part, we discuss about the licensing exam process and overall immigration process. What are the different visa categories? What are the steps? What are the PR point calculations? How to calculate the PR? What is EUI?
and how we have to apply for the different kind of visa applications. That will be the second part. That's the Australian immigration points. Okay, and after that we are going to discuss about some situational case studies. So on based upon that you are going to make your decisions. Okay, so we are going to discuss these points. The first point, like within few minutes this disturbance is going to be resolved. Okay, like okay. Okay, so first we discuss about healthcare landscape in Australia, Australian immigration options, point calculators, New Zealand, how we can move to the New Zealand, how much investment in total, and finally we are going to discuss the conclusion. Okay, so we start from the Australia as a country. Okay, तो ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन एवरीबडी हैज़ टू नो. ऑस्ट्रेलिया की जो इकोनॉमी है उसको एक बार समझना ज़रूरी है. दैट इज़ 1.4 ट्रिलियन, दैट मीन्स 1.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, एंड पॉपुलेशन इज़ ओनली 2.6 करोड़. दैट मीन्स गुजरात से भी थर्ड पार्ट में है और इकोनॉमी बहुत बड़ी है. दूसरा पॉइंट अगर देखोगे तो उसका लैंडस्केप जो है वो 6th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. दैट मीन्स ऑस्ट्रेलिया हैज़ ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी. बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है और बहुत वेल्दी कंट्री है. ओके, वेदर कंडीशन इज़ रियली गुड, पीपल आर वेरी फ्रेंडली. उसकी जो ब्यूटी है दैट इज़ ऑल्सो फैबुलस. सो ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया इज़ कंसिडर्ड एज ए गुड कंट्री टू लिव विद द गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ. ओके, उसके बाद अगर हम उसके हेल्थ केयर के लैंडस्केप को देखें तो दैट इज़ वेरी वेरी यूनिक बिकॉज दिस द मेडिकेयर. दैट मीन्स ईच एंड एवरी ऑस्ट्रेलियंस आर कवर्ड अंडर द मेडिकेयर. So the government is taking care of your health. That is very few country in the world they have this kind of umbrella to cover all the citizens, and pretty much all the services are covered under that category. Life expectancy is 83 years. That means what? If the patient is living up to 83 years and the chronic diseases are start at the early stage like 40 years, that means they are going to depend upon the medications for 43 years. That is considered as an opportunity for the health science professionals like pharmacists. Okay, हेल्थ केयर की स्पेंडिंग अगर देखें तो टोटल जीडीपी की 10% का स्पेंडिंग है वो, दैट इज़ दे आर मेकिंग ऑन द हेल्थ सर्विसेज. So these are the points, and also we have to keep in mind this is the one of the biggest 7 lakh. Okay. Okay, so that's the only now the limited number of candidates. Only we have a limited number of students can participate in this webinar. Okay, the pharmacist benefit scheme, that means what? The pharmaceutical medications are going to be subsidized under this plan. So all these things are clearly indicate the healthcare is well structured and well organized industry in Australia, and healthcare is considered as one of the largest employer in Australia. What is the future of healthcare in Australia? तो ये कुछ पॉइंट्स को अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हमें समझ आएगा कि इंक्रीजिंग नीड ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, डेली बहुत ज़्यादा डिमांड्स बढ़ रही है. एक्सपेंडिंग द एजिंग पॉपुलेशंस, बहुत एज पॉपुलेशन 83 इयर्स की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है तो ओल्डर पॉपुलेशन बढ़ रहा है. एक्सपेंशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फार्मासिस्ट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो फार्मासिस्ट पहले सिर्फ डिस्पेंसिंग करता था. नाउ डिस्पेंसिंग के साथ साथ में वो मेथाडोन प्रोग्राम को रन कर रहा है. डायबिटिक एजुकेटर है, मेडिकेशन मैनेजमेंट रिव्यू कर रहा है. ही इज़ ऑल्सो इन स्पेशलाइज्ड केयर, प्रिस्क्राइबिंग मेडिकेशंस में भी है.
So there are so many different responsibilities had added into the pharmacist pocket. तो यहाँ से क्या हो रहा है कि फार्मासिस्ट का स्कोप बहुत बढ़ रहा है. हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की शॉर्टेज है, इसीलिए इमिग्रेशन पॉलिसी इज़ मोर फेवरेबल फॉर द फार्मासिस्ट. एंड डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़, फार्मासिस्ट कैन वर्क इन ऑल डिफरेंट एरियाज, लाइक इन रिसर्च में जा सकते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ काम कर सकते हो, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, फूड इंडस्ट्री में जा सकते हो. एज ए फार्मासिस्ट ऑस्ट्रेलिया में फूड सेक्शन भी बहुत बड़ा है, जैसे कि वहाँ पे डेयरी, एग्रीकल्चर एंड मरीन, ये तीनों के तीनों सेक्शंस बहुत बड़े हैं. दैट्स वाई द फार्मासिस्ट कैन वर्क इन दीज एरिया एज वेल. ओके, तो ये सारे पॉइंट्स को अगर हम कवर करें तो उससे ऊपर, वंस यू बिकम द रजिस्टर फार्मासिस्ट, अगर आपको प्रोफेशनल डेवलपमेंट में आगे बढ़ना है तो यू हैव अपॉर्चुनिटी टू गेट द मेडिकेशन मैनेजमेंट रिव्यू फार्मासिस्ट and you can start doing your own consultation. Government is paying per patient consultation, आपको गवर्नमेंट पे करती है. दैट्स अ वेरी गुड अमाउंट. $150-200 यू कैन गेट पर कंसल्टेशन. ओके, और दूसरा, अगर आपके पास MMR का क्वालिफिकेशन है, आपके एक्रेडिएशंस है, you are going to collaborate with nursing homes or aged care centers and you can get the more businesses. So all these things are clearly indicate, और आपके पास बिजनेस का भी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द फार्मासिस्ट दोज हु आर वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया, दे आर मोर देन 55 years ओल्ड. और अगर आप थोड़े छोटे एरिया में काम करने के लिए हैप्पी हो तो देर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट योर ओन फार्मेसी एंड मेक ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. तो ये सारे पॉइंट्स इंडिकेट करते हैं कि अगर हम ये पहले सेक्शन को कंक्लूड करें तो कंक्लूजन में ये निकलता है कि फार्मेसी इन ऑस्ट्रेलिया में आपको गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी, यू कैन गेट द ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क, आपके जॉब का पॉसिबिलिटीज़ अच्छी रहेगी, आप एक बहुत बेहतरीन जीवन जी सकते हो वहाँ पे, अच्छे पैसे कमा सकते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट जो वेदर कंडीशन है वो हमारे जैसी और यहाँ से बहुत बेहतर वेदर कंडीशन भी है. सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा, सोशल रिस्पेक्ट मिलेगा, ऑल दीज पॉइंट्स आर जस्टिफाइंग टू वर्क एज ए फार्मासिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया. अगर आप ये सारे पॉइंट से कन्विंस हो तो ऑस्ट्रेलिया इज़ ए गुड डेस्टिनेशन फॉर योर माइग्रेशन. ओके, अब ये पॉइंट्स के बाद आपको क्या जानना चाहिए, तो ऑस्ट्रेलिया में इमिग्रेशन के ऑप्शंस क्या क्या है, दैट शुड बी द सेकेंड पार्ट. इमिग्रेशन के ऑप्शंस को अगर हम देखें तो बहुत सारे वीज़ा सब क्लासेस है. अंडर दोज वीज़ा सब क्लासेस यू कैन अप्लाई फॉर योर इमिग्रेशन. पर मुझे आज आपको 3 वीज़ा सब क्लास के बारे में ही बात करनी है. ओके, सबसे पहला स्किल्ड नॉमिनेटेड वीज़ा, दैट मीन्स 190. दिस इज 190. Okay, second is skilled work regional visa, that's the 491. और तीसरा जो वीज़ा सब क्लास है दैट इज़ अ इंटर्न वीज़ा 407. ओके, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी ही बात करेंगे, पर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो बात करेंगे वो 190 एंड 491, उसके लिए आपको नॉमिनेशन और स्पॉन्सर्ड चाहिए. ओके, नॉमिनेशन एंड स्पॉन्सर्ड चाहिए, जिसको हम बोलते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड वीज़ा. तो स्टेट्स के बारे में समझना ज़रूरी है. धीरे धीरे पहले हम ये बिट्स बना लेते हैं. 190 एंड 491 ये 2 सब क्लास, एंड 407 ये 3 सब क्लास के नाम आपको खाली याद रखने हैं. 190 एंड 491 पहले सेक्शन में अभी बहुत ज़रूरी है. ओके, 191 का मतलब क्या होता है, जैसे आप 491 पे गए हो तो ये 5 साल का वीज़ा है, तो 3 साल के बाद आप कन्वर्ट करके इमिग्रेशन में PR में कन्वर्ट कर सकते हो. दैट इज़ द पॉइंट. ओके, डन. अभी आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्यूपेशन लिस्ट. ऑस्ट्रेलिया अपनी ऑक्यूपेशन की लिस्ट को जारी करता है पीरियोडिकली, जिसमें एक होता है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक स्किल लिस्ट, दूसरा होता है शॉर्ट टर्म स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट, STSOL. तो फार्मासिस्ट इसमें आता है. ओके, अब ये STSOL अब
तीसरा जो पॉइंट आपके दिमाग में समझना है, जो अभी हम क्या कर रहे हैं, बीट्स बना रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े बना रहे हैं, फिर ये सारे टुकड़ों को जोड़ेंगे ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर दिखे। अगर हम फार्मासिस्ट को कैटेगराइज करें तो 4 कैटेगरी में हम फार्मेसी प्रोफेशन में से जा सकते हैं। एक जिसको हम हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कहते हैं, दूसरा इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट, थर्ड इज़ रिटेल फार्मासिस्ट एंड फोर्थ इज़ फार्मेसी टेक्नीशियन। ये जो है ये उसकी कैटेगरी के नंबर्स हैं। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड की जो ऑक्यूपेशन कैटेगरी को क्लासिफाइड किया है, ओके, ये क्लासिफिकेशन के नंबर्स है। इसके नंबर के बेस पर से हम बोल सकते हैं कि हम कौन सी कैटेगरी या तो कौन से प्रोफेशन में फॉल हो रहा है। ये उसके स्किल लेवल से 1 और अगर टेक्नीशियन के बारे में बात करें तो दैट इज़ अ स्किल लेवल 2 की अपॉर्चुनिटी या तो जॉब्स है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये असेसिंग अथॉरिटीज़ ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी काउंसिल्स ये 2 जगह पे है, मतलब कि रिटेल फार्मेसी एंड हॉस्पिटल फार्मेसी का असेसमेंट आपको ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी काउंसिल से करना है, और ये जो वेटासिस है वो बाकी के सारे असेसमेंट करते हैं। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जो इंजीनियरिंग या तो मैनेजमेंट फील्ड वाले होंगे, उसको अपनी इंडिया की जो क्वालिफिकेशन है वो एसेस करने के लिए, उसका असेसमेंट करने के लिए उसको वेटासिस को भेजना होता है। And the Vetasis is going to make a assessment and on based upon that they are going to issue the letter, और ये लेटर इश्यू करते उसके बाद ही आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और दूसरा जो है ये ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी काउंसिल, इसका मतलब ये होता है कि आप जब KPS की डॉक्यूमेंट असेसमेंट करवाते हो उसके बाद आप KPS एग्ज़ाम लिखते हो, वंस यू पास द KPS एग्ज़ाम you will get this positive assessment letter. That is very important. Okay, तो आपकी KPS एग्ज़ाम कहाँ पे काम आएगी? जैसे आपने KPS एग्ज़ाम पास कर लिया तो आपकी डेफिनेशन बदल जाएगी, आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव एसेस हो गए हॉस्पिटल एंड रिटेल फार्मासिस्ट के लिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और फार्मासिस्ट किसके कौन से लिस्ट में आ रहा है? ये शॉर्ट टर्म स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट। चलो ठीक है, यहाँ तक के बीट्स आपके बन गए। अब ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन के बारे में देखें तो वहाँ पे 6 स्टेट्स हैं, ये 6 अलग अलग राज्य हैं और ये 2 उसकी टेरिटरीज है। जैसे हमने बोला था कि 190 एंड 491 ये स्टेट स्पॉन्सर्ड वीज़ा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि आप ये सारे स्टेट्स के पास से स्पॉन्सरशिप मांग सकते हो। अब समझने का जो प्रयास करोगे दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब देखो टोटल अगर हम इसको लगाए तो ये 8 एरिया हो गए, 8 प्रोविंस हो गए जहाँ से हम उसके पास से स्पॉन्सरशिप मांग सकते हैं। किसके लिए? 190 के लिए या तो 491 के लिए। ओके, और दूसरा हमारी डेफिनेशन ये 4 पार्ट्स में बनती है, या तो हम हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है, या तो हम रिटेल फार्मासिस्ट है, या तो हम इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट है, या तो हम फार्मेसी टेक्नीशियन है। तो अब देखो 8 into 4 हमारा प्रोफेशंस और ये 2 कैटेगरीज। ओके, तो अगर आप इसको देखोगे तो 64 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकल रहा है। दैट मीन्स कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है 64 EOI क्रिएट करने की। ये EOI क्या है वो आपको थोड़ी देर के बाद समझ में आएगा, पर अगर हम सिर्फ KPS के बेस पर बात करें तो दिस इज़ अ वेरी पोटेंशियल 32 EOI निकल सकते बन सकते हैं। ओके, तो जैसे ही अगर हम ऑस्ट्रेलिया के PR के बारे में बात करें तो सबसे पहली चीज़ हमें समझ होना चाहिए कि हम ये 2 कैटेगरी को फोकस कर रहे हैं, 190 एंड 491। उसके लिए हम अलग अलग स्टेट्स को अप्रोच कर रहे हैं, तो अलग अलग स्टेट को अप्रोच कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को अप्रोच किया, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए हमने 4 एक्सप्रेशंस डाले, 4 एक्सप्रेशंस डाले 190 के लिए। ओके, पहले तो मैंने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को बोला कि आप मुझे एज ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट
स्पॉन्सर्ड कर दो। दूसरा, मैंने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को बोला कि आप मुझे रिटेल फार्मासिस्ट में स्पॉन्सर्ड कर दो। तीसरा, इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट में स्पॉन्सर्ड कर दो, या तो आप मुझे फार्मेसी टेक्नीशियन में स्पॉन्सर्ड कर दो। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में मैंने अपनी 4 EOI डाली फॉर 190 कैटेगरी के लिए। एग्जैक्टली सेम वे में मैंने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को बोला कि आप मुझे है ना स्टेट स्पॉन्सर्ड में 491 के लिए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के लिए EOI में डाल रहा हूँ, उसके लिए मुझे इनविटेशन दे दो। या तो मुझे रिटेल के लिए इनविटेशन दे दो, या तो मुझे इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट के लिए दे दो, या तो मुझे एज ए फार्मेसी टेक्नीशियन दे दो। ओके, तो ये इस तरह से हम इतनी EOI क्रिएट कर सकते हैं। तो समझ में आ रहा है आपको कि ये 32 डिफरेंट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब कि आई एम इंटरेस्टेड टू माइग्रेट टू वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एज ए रिटेल फार्मासिस्ट, फॉर दैट यू कैन गिव मी द स्पॉन्सरशिप। ओके, अगर ये आपको समझ आ रहा है तो यू जस्ट गिव ए थम्स अप और राइट, आप क्वेश्चन आंसर में वाई लिख के भेज दीजिए ताकि मुझे समझ आए कि वी आर ऑन द कॉमन पेज। ओके, गुड 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 गुड, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो उसका मतलब है कि हम ये EOI मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं, हर एक प्रोविंस के लिए कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट, यू हैव टू कीप इन माइंड। उसके बाद देखो, तो अब आता है कि हम एक PR के पॉइंट्स को कैलकुलेट करें। ओके, आप भी आपके PR के पॉइंट्स को साथ साथ में कैलकुलेट करते जाइए। आपकी कैटेगरी के वाइज आप एक साइड में पेपर में या तो आपके कंप्यूटर में कहीं पे लिखते जाइए, आप जो भी कैटेगरी में फॉल होते हो उसमें। अगर मान लीजिए कि आपको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने 491 के लिए अप्रूवल दे दिया और दूसरे स्टेट ने आपको 190 के लिए अप्रूवल दे दिया, तो मान लीजिए कि आपको 190 ये डायरेक्ट PR है और ये प्रोविजनल PR है, तो इसके लिए हम जा रहे हैं, तो इसके 5 पॉइंट्स आपको मिल गए। अब मान लीजिए कि आपकी एज अबाउट 26 साल है, तो आपको 30 पॉइंट ये मिल गए। अब आपकी मैरिज नहीं हुई है तो आपके 10 पॉइंट मिल गए क्योंकि आप मैरिड नहीं हो। अगर आपकी वाइफ भी वो ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेसिडेंट है तो उसके 10 पॉइंट मिलेंगे, पर आप तो फिर आप सीधे ही डिपेंडेंट वीज़ा पे जाओगे। पर आपकी वाइफ भी स्किल्ड है, मतलब वो भी अच्छा पढ़ी है और उसकी इंग्लिश की लेवल भी 6 बैंड तक की है, तो भी आपको 10 पॉइंट मिल सकते हैं। यहाँ पे अभी हम शादी नहीं हुए, 26 साल की उम्र है और इंग्लिश में 7 नॉट लेस देन 7 का हमारा स्कोर है। 7 नॉट लेस देन 7 उसको हम प्रोफिशिएंट बोलते हैं। अगर 8 नॉट लेस देन 8 है तो उसको हम सुपीरियर बोलते हैं। 6 नॉट लेस देन 6 है तो उसको हम कॉम्पिटेंट बोलते हैं। ओके, तो ये पहले पेज में हमारे पॉइंट्स बनते हैं 10 + 10 20 + 30 50 + 5। तो यहाँ पे पहले पेज में हमारे पॉइंट्स बने 55। ओके, आगे हम ऐड करते जाएंगे उसको। ओके, अब दूसरे पेज में आते हैं कि आउटसाइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया हमारा वर्क एक्सपीरियंस कितना है। तो मान लीजिए कि हमारा 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, 26 साल की उम्र बताई, तो आप 17 साल के बाद आपने फार्मेसी की शुरुआत की, तो 21-22 साल में आपने फार्मेसी ख़त्म कर दी, उसके बाद आप काम करना चालू किए, 3 साल का एक्सपीरियंस है तो 5 पॉइंट से मिल गए। ऑस्ट्रेलिया में आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपकी क्वालिफिकेशन बैचलर ऑफ फार्मेसी है, तो उसका आपको 15 पॉइंट मिल गए। ओके, अब ऑस्ट्रेलिया में आपने स्टडी नहीं किया है, ओके, तो इसके कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। अगर फ्रेश ग्रेजुएट बच्चे हैं तो ये पॉइंट्स के बारे में वो सोच सकते हैं। ओके, तो ये 0 पॉइंट्स हो गए। तो यहाँ पे आपको मिले 15 + 5 20, तो 20 प्लस आगे के पेज में 55 थे। ओके, तो हमारे टोटल हो गए 75 पॉइंट्स। अभी देख लेते हैं एक बार, 55 ये हो गए और 20 ये 75। ओके, अब आगे जाते हैं।
मान लीजिए कि आप अगर ऑस्ट्रेलिया में ही पढ़े हो और पोस्ट ग्रेड रिसर्च पढ़े हो तो 10 पॉइंट्स, पर हमें तो ये नहीं किया है तो इसका कोई पॉइंट्स नहीं मिलेगा। हम अगर कोई डोमेस्टिक लैंग्वेज जैसे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेटन वो ट्रांसलेशन लेवल तक अगर हम एग्ज़ाम नाटी की लिख सकते हो तो इसके 5 पॉइंट्स मिलेंगे, ये भी हमारे काम का नहीं है। लिव एंड स्टडी इन रीजनल एरिया, ये भी बच्चों के लिए जो पढ़ाई के लिए जा रहे हैं उसके लिए। तो समझ लीजिए कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है 20 पॉइंट्स इस तरह से बढ़ाने की और 1 साल के वर्क एक्सपीरियंस के 5 पॉइंट, तो आप अराउंड 25 पॉइंट्स बढ़ा सकते हो एज ए स्टूडेंट्स जाके। ओके, ये प्रोफेशनल ईयर वाला हमारे काम का नहीं है। नॉमिनेशन हमने ले लिया ऑलरेडी 5 पॉइंट्स और आगे वाला 15 पॉइंट्स, तो इसमें से हमें कोई पॉइंट्स नहीं मिले। अब पासिंग क्राइटेरिया क्या है 65 और हमारा क्या बन रहा है 75, उसका मतलब आप एलिजिबल हो। अब सोचो कि जो बच्चों ने 3 साल का एक्सपीरियंस है, 26 साल की उम्र है, शादी नहीं की है या तो शादी की है और अपनी स्पाउस एक अच्छी ग्रेजुएशन या तो अच्छी एजुकेशन विथ 6 बैंड नॉट लेस देन 6 की कैपेबिलिटी रखती है और आपने KPS पास कर लिया है, तो आपके पास एटलीस्ट 32 जितने UI होंगे और आपके पॉइंट 75 होंगे, तो आपको PR मिलना बहुत ही पॉसिबल है, दैट इज़ वेरी पॉसिबल। ओके, अब देखो यहाँ पे जो PR के जो पॉइंट जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरह से होती है। देखिए, सबसे पहले ये इमिग्रेशन की वेबसाइट से ही लिया है तो आप वहाँ पे भी रेफ़र कर सकते हो। चेक योर ऑक्यूपेशन इज़ ऑन द स्किल्ड लिस्ट, तो है रिटेल और हॉस्पिटल फार्मेसी, यस। क्या चाहिए KPS कहाँ से लिख सकते हो, तो इंडिया से लिख सकते हो और उसको पास करोगे तो आपको ये असेसमेंट मिल जाएगा। स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में आप फॉल हो गए। दूसरा, आपका 65 पॉइंट्स या तो उससे ज़्यादा हो रहे हैं, 65 पॉइंट्स हो रहे हैं, दैट मीन्स ये डन हो गया आपका काम। ओके, उसके बाद क्या करोगे आप, ये सारी चीज़ करने के बाद सबमिट योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये कितने बनाओगे आप, मल्टीपल बना लोगे, आप 64 तक बना सकते हो, पर अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो प्रैक्टिकली हम 8 × 2 × 2 32 तो बना ही सकते हैं, कुछ नहीं तो 30 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बना के ये पॉइंट्स के बेस पर हम नाउ वी विल वेट। और उसके बाद हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू गैदर ऑल द डॉक्यूमेंट्स, जो पॉइंट्स हमने क्लेम किए हैं उसके सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करेंगे। देन वी वेट टिल गेटिंग द इन्विटेशन टू अप्लाई। जैसे ही आपको इन्विटेशन मिलता है यू कैन अप्लाई फॉर परमानेंट रेसिडेंसी और आपके वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। दिस इज़ द वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस यू हैव टू फॉलो। अब जो ब्यूटीफुल पार्ट है वो क्या है, जैसे फ्रेश ग्रेजुएट है उसको 407 के लिए अप्लाई कर सकते हो, या तो फ्रेश ग्रेजुएट जो है वो स्टूडेंट वीज़ा पे भी जा सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाओगे तो आपके पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, आपको पोस्ट स्टडी वर्क मिलेगा, पोस्ट स्टडी वर्क मिलेगा तो उसके बेस पर से आपके पॉइंट्स और बढ़ जाएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स के हिसाब से फ्रेश ग्रेजुएट्स शुड हैव टू थिंक अबाउट स्टूडेंट वीज़ा एज ए ऑप्शन और 407 के बारे में भी सोच सकते हो। दूसरा क्या होगा, जिसके पास एक्सपीरियंस है, काफ़ी एक्सपीरियंस है, वो लोग 491 या तो 190 की एप्लीकेशन डाल दें, तो ये अपने आप में चलती रहेगी। सुनिएगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 491 और 190 की एप्लीकेशन चलती रहेगी और उसके साथ साथ में आप 407 की भी एप्लीकेशन डाल दो, क्योंकि उसका प्रोसेसिंग टाइम 190 और 491 का प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा सा लंबा है, 407 का प्रोसेसिंग टाइम कम है। तो आप 407 पे चले जाओ, आप एज ए इंटर्न काम करना चालू कर दो, आपका काम चल रहा है, जैसे आपका 190 या 491 अप्रूव्ड होगा तो आप ऑस्ट्रेलिया में ही रहोगे और वहाँ पे ही आपकी वीज़ा कैटेगरी चेंज हो जाएगी और आप यहाँ से इसमें मूव कर जाओगे।
आपको देश भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं करना है। तो आपकी 491 की या तो 190 की एप्लीकेशन एज इट इज़ चलती रहेगी, साथ साथ में आपकी 407 की भी एप्लीकेशन हो जाएगी। तो आप फास्ट माइग्रेट कर सकते हो, आपकी फैमिली के साथ माइग्रेट कर सकते हो, और जैसे ही आप वहाँ जाके आपकी 491 अप्रूव्ड हुई तो यू कैन कंटिन्यू स्टे विद दैट, एंड 190 अप्रूव हो गई तो आपका सीधा पीआर ही हो गया। अगर 491 हो गई तो आप वहाँ पे रह सकते हो, काम कर सकते हो, आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, इज एज गुड एज पीआर, और कुछ एक्सपीरियंस के बाद यू कैन कन्वर्ट इनटू 191 और ये आपकी परमानेंट रेसिडेंसी में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड उसके बाद आप सीधा ही किसके लिए अप्लाई करोगे, थोड़े टाइम के बाद आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करोगे। दैट इज़ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। मान लो कि फ्रेश ग्रेजुएट बच्चा है या तो 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, तो 3 साल के एक्सपीरियंस में आपको पॉइंट तो मिलनी नहीं है, पर आप 407 को अप्रोच करोगे तो 407 आपका ग्रांट हो गया। 407 ग्रांट हो गया, आपको 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया ऑस्ट्रेलिया में, उसके पॉइंट्स आपको बढ़ जाएंगे। अगर 407 आपका चल रहा है, आप इंटर्नशिप कर रहे हो, आपके पीआर के पॉइंट्स नहीं बन रहे हैं, तो 407 से आप स्टूडेंट्स में कन्वर्ट करवा सकते हो। अगर आपके पीआर के पॉइंट हो जाते हैं तो 407 से आप पीआर की एप्लीकेशन भी डाल सकते हो। तो इस तरह से भी आप ये मूवमेंट ले सकते हो। तो यहाँ तक मेरा जो कहने का मतलब है वो किस तरह से निकल रहा है, ऐसा कि जिसके पास एक्सपीरियंस है वो अपनी 491-190 के बारे में यूआई क्रिएट करके हम सोच सकते कि एपीएस पास करने के बाद जो मीडियम रेंज में आते हैं, जिसको 3 साल से कम का एक्सपीरियंस है, और ऐसे लोग और फ्रेश ग्रेजुएट, वो दोनों ही तरफ सोच सकते, 407 की तरफ भी सोच सकते हैं, स्टूडेंट वीज़ा के लिए भी सोच सकते हैं। स्टूडेंट वीज़ा के अपने कुछ बेनिफिट्स हैं, जो आप जा सकते हो, आप वहाँ पे एसोसिएट हो सकते हो, आपकी खुद की एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हो, लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स को लर्न कर सकते हो, और पढ़ाई के साथ साथ में आप आपकी फार्मेसी की लाइसेंस को कंप्लीट कर सकते हो। सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो तो आपकी पढ़ाई चल रही है, उसके साथ आपके एपीएस भी कर लोगे, इंटर्नशिप भी चलती रहेगी, आप इंटर्न रिटर्न भी लिखोगे, इंटर्न ओरल भी लिखोगे, सारी चीज़ें कंप्लीट करके आप फार्मासिस्ट बन जाओगे। बाय द टाइम यू कंप्लीट योर स्टडी यू बिकम द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो अगर आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी सपोर्ट कर रही है तो आप स्टूडेंट वीज़ा को भी ऑप्ट कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, और आप अच्छे प्रोग्राम को पसंद करोगे तो आपके पास एक और स्कोप खुल जाएगा वो प्रोग्राम के बेस पर पीआर करने के लिए। ओके, अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम में जाओगे, वहाँ पे 2 साल की मास्टर्स पढ़ोगे रिसर्च ओरिएंटेड, तो आपको और 15 पॉइंट्स पीआर के लिए मिल जाएंगे। तो देर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू स्टडी, और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी वैसे भी वर्ल्ड में टॉप ग्रेड यूनिवर्सिटीज़ में फॉल होती है। ओके, तो ये सारे बेनिफिट्स आप यहाँ से ले सकते हो। अब दूसरा जो ब्यूटीफुल पॉइंट है वो ये है कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही सेम कंट्री है, ब्यूटीफुल है बहुत न्यूजीलैंड, लेकिन थोड़ा छोटा कंट्री है न्यूजीलैंड, और वहाँ पे आपको कमाने के लिए थोड़ा सा कम अपॉर्चुनिटी रहेगी। पर न्यूजीलैंड की जो ब्यूटी है वो ये है कि आप डायरेक्ट ट्रेनी वीज़ा एंड रेसिडेंस वर्क वीज़ा के लिए जा सकते हो। इस तरह के प्रोविजंस और ऑप्शंस है आपके पास। तो आपको करना क्या है, आपका स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होना चाहिए। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में सबसे पहले तो आपको केपीएससी कर लेना है। देखो, अगर आप थियोरेटिकली देखोगे तो न्यूजीलैंड के स्टेप्स इस तरह से होंगे कि भाई आप पहले तो 7 बैंड नॉट लेस देन 7 लेके आओ, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करो, आपकी सबमिट द चेकलिस्ट, उसके बाद आपका कंसिडरेशन फॉर्म भरो, फिर ये रिसीव होगा, अप्रूवल आएगा, फिर आपके एपीएस के लिए एनरोल करो, फिर आपके एपीएस एग्ज़ाम लिखो। यहाँ तक की जो प्रोसेस है उसमें पहला जो डिफरेंस है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के बीच में वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया में आपको IELTS KPS से पहले नहीं चाहिए, और न्यूजीलैंड में IELTS पहले लिखना जरूरी है। दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन दिस टू।
कंट्री। लेकिन अगर आप पहले ही KPS लिख देते हो, KPS पास कर लिया, KPS पास करने के बाद आप सीधा ही न्यूजीलैंड की असेसमेंट के लिए जा सकते हो। ओके, तो ये प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। उसके बाद आप न्यूजीलैंड फार्मेसी लेजिस्लेशन का जो 3 महीने का कोर्स है वो भी आप इंडिया से कर सकते हो। ये प्रोसेस कंप्लीट करोगे तो उसके बेस पर आप इंडिया से डायरेक्ट न्यूजीलैंड भी माइग्रेट कर सकते हो। ओके, अभी ये पूरी प्रोसेस को समझने के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट के प्लान को समझना ज़रूरी है। तो इंडिया से आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दोनों जगह पे जा सकते हो। देखो, आप जो खर्चा कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसमें पहले आपने ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिजिबिलिटी चेक का एक्सपेंस किया, फिर एग्ज़ाम का एक्सपेंस किया, फिर प्रोविजनल लाइसेंस का किया। ओके, इसके बाद आप एज ए इंटर्न फार्मासिस्ट जो काम करना है उसका रजिस्ट्रेशन करोगे। ये सारी चीज़ें कंप्लीट करोगे तो आपका टोटल खर्चा लगभग $7,000 होगा। ओके, तो फार्मासिस्ट $55 अर्न करता है, तो एक महीने की अर्निंग आपकी लगभग $8,000 से $9,000 से ऊपर ही होगी, क्योंकि 40 घंटे से आप ज़्यादा ही काम करोगे। उसका मतलब यह है कि पूरी प्रोसेस, आप पूरा फार्मासिस्ट बनने की प्रोसेस में जो इन्वेस्टमेंट करते हो वो आपका 1 से 2 महीने का ही एक्सपेंस है। उसमें भी आप इंटर्नशिप पे भी कमाओगे। तो मोटा मोटा समझिए तो इट्स रियली गुड ROI। आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी गुड फॉर बिकमिंग रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एंड गेटिंग द माइग्रेशंस। एनुअल अर्निंग $1,00,000 से ऊपर ही होनी है। दैट इज़ लाइक अबाउट 10% ऑफ द पॉपुलेशन के लेवल तक आप वहाँ पे कमा रहे हो। न्यूजीलैंड में ये जो कोर्स है उसका खर्चा थोड़ा बड़ा है, पर बाकी कोई एग्ज़ाम्स उतनी लिखनी नहीं होती है। टोटल एक्सपेंस आपके होंगे $15,000। आप $7,000-7,500 कमाओगे तो दैट्स कंसिडर एज ए 2 months ऑफ योर इन्वेस्टमेंट टू रिकवर इन न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में अबाउट 86,000 to $1,00,000 तक आप कमा सकते हो। तो इज़ फेयरली गुड पोटेंशियल टू अर्न, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपकी वहाँ पे सेटलमेंट के लिए। अब देखिए फार्माविजन आपको किस तरह से हेल्प कर सकता है। फार्माविजन इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन 2 ways। एक हमारा प्रोग्राम है जिसको हम KPS प्रिपरेशन प्रोग्राम बोलते हैं। सेकेंड प्रोग्राम इज़ कंसिडर एज ए KPS प्लस। उसमें क्या क्या इंक्लूड है? एग्ज़ाम प्रिपरेशन एंड कोचिंग, लाइव क्लास, सॉफ्ट कॉपी मटेरियल, हार्ड कॉपी मटेरियल, डॉक्यूमेंट असेसमेंट आपका हो जाएगा, लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा आपको, नेटवर्किंग एंड कम्युनिटी। ये सारी चीज़ें कवर्ड है दोनों ही प्रोग्राम में। पर KPS प्लस जिसकी फ़ीस $950 है, मतलब $50,000 है, और इसकी $35,000 है। आप अबाउट $300 ज़्यादा पे कर रहे हो अगर आप प्लस ले रहे हो। तो ये किसके लिए है वो भी हम आगे बात करेंगे। ओके, तो इसमें क्या होगा, आपको जॉब प्लेसमेंट असिस्टेंट देंगे, किस तरह से इफेक्टिव जॉब सर्च करना है, कैसे रिज्यूम बनाना है, इंटरव्यू किस तरह से प्रिपेयर करना है, एवरीथिंग विल बी असिस्टिंग बाय फार्माविजन। नेटवर्किंग विद द फार्माविजन के जो पार्टनर एम्प्लॉयर है उसके साथ आपका कनेक्शंस करवाएंगे। आपको रिकमेंडेशन लेटर इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड बाय फार्माविजन। ओके, सर्टिफिकेट देंगे, जो कम्युनिटी फार्मेसी में जो रिक्वायर्ड स्किल्स है उसके बारे में फार्माविजन इज गोइंग टू प्रोवाइड यू द सर्टिफिकेट। प्रोविजनल फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन के लिए हेल्प करेंगे, इंटर्नशिप के लिए हेल्प करेंगे, इमिग्रेशन एंड वीज़ा के लिए वी आर गोइंग टू गाइड यू। ओके, फॉर विच काइंड ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन, हाउ टू प्रिपेयर, क्या करना चाहिए, वो सारी गाइडेंस देंगे आपको। UI की एप्लीकेशन प्रिपरेशन के लिए वी कैन हेल्प यू आउट। ओके, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया कर लिया है, KPS कर लिया है, आपकी इंग्लिश भी हो गई है, नाउ यू वुड लाइक टू एक्सटेंड to the New Zealand option as well, we can help you for New Zealand licensing, registration, personal support and guidance। तो इतनी एक्स्ट्रा सर्विसेज आपको मिलेगी, यू जस्ट हैव टू मेक ए लिटिल बिट एक्स्ट्रा पेमेंट। तो जब भी आप रजिस्टर करते हो उसी टाइम पे आपको डिसाइड करना है कि यू वांट टू गो विद द KPS एग्जाम प्रिपरेशन और यू वांट टू गो विद द KPS प्लस, क्योंकि यहाँ पे आपको डिस्काउंटेड प्राइस में 15,000 रुपीज़ में ही KPS प्लस मिल रहा है। ओके, अगर अकेले खाली ये प्लस को लेने जाओगे तो दैट विल कॉस्ट मोर, दैट विल कॉस्ट अबाउट 30,000 रुपीज़ फॉर ऑल अदर सर्विसेज। इसीलिए अगर आप कंबाइन में लोगे तो दैट इज़ मोर वैल्यूएबल कंपेयर टू बाइंग इट्स इन ए सेपरेट वे।
ओके, अगर हम कंक्लूजन करें पूरी बात का तो इस तरह से है, हमारे पास 3 अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हैं ऐसा मानो। एक बच्चा है जिसके पास फ्यू इयर्स एक्सपीरियंस इन इंडिया, तो उसको क्या सोचना चाहिए, 190491 के लिए सोचना चाहिए और साथ में 407 करके चले जाना चाहिए। और ये प्रोसेस अगर आपकी है तो एम्प्लॉयर इज़ ऑल्सो फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। उसको KPS प्लस प्लान के लिए जाना चाहिए जिसके पास एक्सपीरियंस है। ओके, जो बच्चे फ्रेश ग्रेजुएट है उसको 407 के बारे में या तो स्टूडेंट वीज़ा के लिए सोचना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए जा रहे हो तो आपको KPS प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप सिर्फ KPS ले लो। ओके, अगर आप 407 के लिए ट्राई करना चाहते हो तो आपके लिए 407 के प्रयास, उसके लिए KPS प्लस कैन हेल्प यू आउट। और दो स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी इन ऑस्ट्रेलिया और वो अपनी जो पढ़ाई के साथ साथ में प्रोसेस कर रहे हैं उसके लिए तो सिर्फ KPS ही इनफ है, उसको 190 एंड 491 के लिए प्लान करना चाहिए बिकॉज दे आर ऑन शोर। ओके, तो फार्मा विजन की ये 2 प्रिपरेशन प्लान है KPS के बारे में। आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स के बारे में बहुत सारा क्लैरिटी मिल गई होगी। यू कैन कनेक्ट विथ अस, हमारी जो वेबसाइट्स है वहाँ पे बहुत सारे ब्लॉग्स हैं। या तो आप ऑफिस पे मिलने के लिए आ सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, द वॉट एवर वे यू फील कंफर्टेबल यू कैन कनेक्ट विथ अस। ओके, तो ये क्विक ओवरव्यू मैंने कर दिया, उसको अगर हम कंक्लूड करें तो सबसे पहला पॉइंट है कि ऑस्ट्रेलिया इज़ ए गुड कंट्री टू माइग्रेट डायरेक्टली फ्रॉम इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया, दैट इज़ अ वन पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट इज़ यू हैव टू फोकस ऑन, ये जो हमने ये जो टूल दिया है ना आपको PR के पॉइंट का कैलकुलेशन वाला, वो PR के पॉइंट के कैलकुलेशंस के बेस पर एक बार कैलकुलेट करके देख लो कि आपके कितने पॉइंट्स हो रहा है। तो वहाँ से आप एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कर सकते हो कि ओके मेरे पॉइंट्स बन रहे हैं, पॉइंट्स नहीं बन रहे, तो क्या मैं करूँ ताकि मेरे पॉइंट्स बन जाए। ओके, तो ये 2 चीज़ों से आपको एक हेल्प मिल जाएगी कि विच स्ट्रेटेजी यू हैव टू अप्लाई। देन यू हैव टू फोकस ऑन योर लाइसेंसिंग एग्ज़ाम प्रिपरेशन, और आप पहले से ही डिसाइड कर लो कि मुझे कौन से वीज़ा ऑप्शंस के लिए प्लान करना है। अगर हम इस तरह से स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करेंगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट द सक्सेसफुल डिसीजन मेकिंग एंड आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी रहेगी। ओके, तो यहाँ तक के पॉइंट्स। अभी हम Q&A स्टार्ट करते उससे पहले आप एक आपके रेट्स दे दीजिए ताकि मुझे ये समझ आए कि आपको कितने लेवल तक का कनेक्शंस बिल्ड हुआ है। ओके, अगर आपको ऐसा लगता है कि दैट इज़ मेकिंग सेंस, ओके गुड, इज़ अबाउट 85%, 90% स्टूडेंट्स आर अबाउट 4.6% तक के स्टार्स में है, that is really good. Pretty much all the students are very happy about the things. Okay, still I am expecting to get some more reviews, like आपकी inputs आएगी तो मुझे ये समझ आएगा कि हम जो प्रयास कर रहे हैं, हम जो आपको कहने का ट्राई कर रहे हैं, that is effective और कहाँ पे हम improve कर सकते हैं। Still few more responses I am waiting for. Okay, thank you very much. About 98% students, 98% students, they have said is 4.6 star. That is really really good. Thank you very much for your response. और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इंटरेस्टिंग लगा, वेरी इंटरेस्टिंग लगा, वो थोड़ा सा आप एक रिव्यू कर दीजिए ताकि आई कैन गेट द अंडरस्टैंडिंग अबाउट। और उसके बाद ओके, दैट्स गुड 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 गुड, very good. About 75%, 80% students, they say it is very interesting. That would be great. Okay, thank you very much for your responses, and now we can jump into the Q&A. Okay, whatever questions you have you can type. Okay, here like some of the students, they are a Bachelor of Pharmacy or PharmD students, both are equally treated. Okay, कुछ questions
आ गए हैं पहले से ही, उसको हम क्लियर करते जाते हैं. ओके, आई एम नॉट अ बैचलर फार्मासिस्ट. आई एम नॉट अ बैचलर फार्मासिस्ट मीन्स द डिप्लोमा फार्मासिस्ट है तो आप फार्मेसी लाइसेंसिंग एग्ज़ाम नहीं लिख सकते हो. लेकिन डिप्लोमा फार्मेसी करने के बाद अगर आपने कुछ साल एक्सपीरियंस किया है इन फार्मेसी स्टोर, आप एज ए फार्मेसी टेक्नीशियन अप्रोच कर सकते हो. आप KPS एग्ज़ाम नहीं लिख सकते हो, लेकिन आप वेटासिस की असेसमेंट से फार्मेसी टेक्नीशियन बन सकते हो और उसके बेस पर आप सारे स्टेट्स में EOI डाल के एप्लीकेशंस कर सकते हैं. ओके, पर आपके पॉइंट्स कम होंगे, एक्सपीरियंस के पॉइंट्स बढ़ाने पड़ेंगे. ओके, आफ्टर KPS एग्ज़ाम, जैसे ही आपकी KPS एग्ज़ाम ख़त्म होती है उसके बाद आपको इंग्लिश टेस्ट लिखना है. इंग्लिश टेस्ट लिखने के बाद आपको 4 ऑप्शन है टेस्ट के. या तो आप IELTS लिखो, PTE लिखो, OET लिखो या तो TOEFL लिखो. ओके, तो उसमें से आपको डिज़ायर स्कोर लाना है जो 7 नॉट लेस देन 7 है. वंस यू स्कोर दैट देन यू कैन अप्लाई फॉर प्रोविजनल फार्मासिस्ट लाइसेंस. एट द सेम टाइम यू हैव टू स्टार्ट फाइंडिंग द इंटर्नशिप. इंटर्नशिप के बहुत सारे ऑप्शंस हैं. अगर हम आज की बात करें, आज की, तो अभी 3000 से ज़्यादा फार्मासिस्ट की जॉब अवेलेबल है. उसमें बहुत सारी इंटर्न्स के लिए भी वैकेंसी अवेलेबल है, तो ये मिलना उतना मुश्किल नहीं है. तो जैसे ही आपने इंटर्नशिप को सर्च कर लिया, ढूंढ लिया, फिर उसको अप्रूव करवाना है. वो इंटर्नशिप और आपके जो प्रिसेप्टार है उसको अप्रूव करवाना है फ्रॉम द फार्मेसी बोर्ड. ये अप्रूवल हो गया, उसके बाद आप इंटर्नशिप स्टार्ट करोगे. वंस यू स्टार्ट योर इंटर्नशिप, आपको एक इंटर्न प्रोग्राम के लिए एनरोल करना है, जिसके लिए 6 डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स ऑथोराइज्ड है और आपको एक इंटर्न ओरल एंड इंटर रिटन एग्ज़ाम लिखना है. ये पूरी की पूरी प्रोसेस बहुत डिटेल में दी गई है. अगर आप फार्मा विजन की वेबसाइट्स पर जाओगे, वहाँ से फार्मा विजन एकेडमी में जाओगे, तो वहाँ पे एक KPS का पूरा एक कोर्स है जो बहुत ही नॉमिनल प्राइस है और वो आपको करीब करीब 2-3 घंटे का पूरा लेक्चर्स, उसकी वीडियो, उसकी ई-बुक्स, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल. ओके, तो वो भी आप कर सकते हो. अगर आप ब्लॉग्स में जाओगे तो फ्री में आपको ब्लॉग्स मिल जाएंगे. आप वीडियो सेक्शन में जाओगे वेबसाइट में तो वहाँ पे फ्री वीडियोस भी मिल जाएंगे. अगर आप रिसोर्सेज पेज पे जाओगे तो रिसोर्सेज पेज पे आपको ई-बुक भी मिल जाएगी जो आप जिसको रिफ़र कर सकते हो. और आप ऐसे इंस्पिरेशन के लिए सक्सेस स्टोरी में जाओगे तो आपको लगेगा कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑलरेडी बन चुके हैं. ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जानी है. मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे. ओके, माय फार्मा विजन, ये आप वेबसाइट पर गए. जैसे वेबसाइट पर जाके ये रिसोर्सेज वाले पेज में गए, पहले आप ये एकेडमी में जाओगे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये फार्मेसी एकेडमी में जाके आप ये कोर्सेज को हिट करोगे तो कोर्सेज वाला जो पेज है वहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलियन फार्मासिस्ट लाइसेंस 700 रुपये है खाली. 700 रुपीज़ में ये पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा जिसमें ईच एंड एवरीथिंग हैज़ बीन गिवन, ईच एंड एवरीथिंग जो आपको चाहिए. ओके, और आपको फ्री रिसोर्सेज में जाना है तो आप यहाँ पे जाओ. ओके, ये आप ब्लॉग्स में जाओगे, ब्लॉग्स, उसके बाद आप वीडियोस में भी जा सकते हो. सक्सेस स्टोरी पे जाओगे तो सक्सेस स्टोरी में आपको ये सारे बच्चों की जो वीडियोस, उसकी सक्सेस स्टोरीज़ के बारे में आपको पता चलेगा. तो वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स है, उसमें से कुछ स्टूडेंट्स के नाम और ये यहाँ पे रखा है ताकि आप इसको फील कर सको. 407 की रिक्वायरमेंट क्या है? 407 की रिक्वायरमेंट है KPS पास होना चाहिए, प्रोविजनल लाइसेंस होना चाहिए और आपके पास एक स्पॉन्सर्ड एम्प्लॉयर होना चाहिए, जो एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर्ड करना चाहता हो. और ये अगर हम थोड़े से प्रयास करें तो मिल जाता है स्पॉन्सर्ड, उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, पर उसके लिए थोड़ा सा एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच करना ज़रूरी है. $407 के लिए तो KPS पास करना ज़रूरी है. Is there any chances of 407 visa if I am already in Australia with the student visa? तो फिर 407 क्यों करोगे?
तो 407 मत करो अभी, तो आप उसमें से कन्वर्ट करने का कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा है कि आप आपकी पढ़ाई के साथ साथ में लाइसेंस को कंप्लीट कर लो। लाइसेंस कंप्लीट करने के बाद यू कैन मूव ऑन टू 491। ओके, क्योंकि ये अगर आप 407 में कन्वर्ट करोगे तो पहले आपका एक एग्जिस्टिंग वीज़ा का जो स्टेटस है उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वॉट अबाउट वर्क वीज़ा? यही तो वर्क वीज़ा है ना, 407 ही तो इंटर्न वर्क वीज़ा ही है वो। कैन यू एक्सप्लेन 401? ओके, 407 के लिए इंडिया से जॉब लेकर जाना कंपलसरी है? यस, जॉब लेकर, क्योंकि वो आपको एम्प्लॉयर ही आपका स्पॉन्सर करेगा ना। आई पास माई बैचलर ऑफ फार्मेसी 2014, करंटली आई पास्ड KPS इन नवंबर 23. 2 years experience is in retail pharmacy. Which visa should I look for? 407 के लिए ट्राई करो। ओके, क्योंकि आपका आई डोंट थिंक सो कि आपका 3 साल से कम एक्सपीरियंस है तो आपके पॉइंट्स बनेंगे। एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए। ऑफिस संडे को ओपन नहीं होती है। हाउ मच टाइम टेक आफ्टर KPS एंड लॉन्चिंग EOI टू फाइनल वीज़ा? डिपेंड अपॉन द वीज़ा कैटेगरीज, टाइम लाइन बदलती रहती है, पर EOI सारे सबमिट कर दोगे तो आपको अगर अप्रूवल मिल जाता है, पॉइंट्स मिल जाते हैं, इनविटेशन आता है, तो विद इन फ्यू मंथ्स यू कैन माइग्रेट। और जैसे अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सपेंस करना चाहते हो तो पहले 491 या तो 190 की एप्लीकेशन को लॉन्च कर दो, कंप्लीट कर दो। अगर उसमें बहुत टाइम लग रहा है तो आप 407 की एप्लीकेशन को भी साथ साथ में लॉन्च करो। आपके एम्प्लॉयर को ये बोलोगे कि ऑलरेडी यू हैव अप्लाई फॉर 190 एंड योर एप्लीकेशन इज़ अंडर प्रोसेस, तो उसको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और 407 अप्रूव्ड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ओके, ऐसा ही एक वीडियो एक्सपीरियंस शेयरिंग में यूट्यूब में डाला है हमने। कौन से स्टूडेंट्स का है ये ध्रुव जोशी करके है ना ये स्टूडेंट्स, ये उसके बारे में आप उसका देखोगे वीडियो तो दिस इज़ एक्सप्लेनिंग ऑल दिस थिंग्स बिकॉज ही हैज़ डन दिस प्रोसेस। ओके, माई फार्मा विजन की यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो ये भी प्रोसेस आपको समझ आ जाएगी। करने स्पॉन्सर्ड सेटिंग करी आप पूछो आप इंटर्नशिप माटे? यस, इंटर्नशिप के लिए वी कैन हेल्प यू आउट किंजल। I have done document evaluation in APC website for New Zealand. Again, I have to start document evaluation or not? Okay, APC is going to evaluate your document evaluation process for Australia. Okay, once, like for example, once you have completed your Australian pharmacist licensing exam, KPS पास करने के बाद आपको न्यूजीलैंड में जाना है, तो न्यूजीलैंड की जो प्रोसेस जो मैंने बताई थी वहाँ पे आपको सीधा KPS का भी रिजल्ट डाल देना है। तो वो आपको जब अप्रूवल देंगे तो एवरीथिंग इज़ इन कंबाइन अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद आपको सीधा लो के लिए ही तैयार होना है। ओके, IELTS एग्जामिनेशन इज अपफ्रंट रिक्वायर्ड है न्यूजीलैंड के लिए, और ऑस्ट्रेलिया के लिए अपफ्रंट रिक्वायर्ड नहीं है। पहले KPS पास कर लो, इसके बाद जरूरी है। ओके, आपका 13 इयर्स का एक्सपीरियंस है, दैट वुड बी ग्रेट, पर आप ये भी देख लो कि आपके पॉइंट्स के कैलकुलेशन में यहाँ पे एक एज ब्रैकेट है जो 45 इयर्स के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, और कुछ टाइम के जो आपकी जितनी एज ज़्यादा होती है उतना आपको एक्सपीरियंस के पॉइंट्स मिलेंगे, पर एज के पॉइंट्स उतने कम हो जाएंगे। ओके, 407 के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। पहले आपके पास एम्प्लॉयर होना चाहिए। एम्प्लॉयर के लिए जो चीज़ है, एम्प्लॉयर को क्या चाहिए, आप एक एज ए इंटर्न काम कर सकते हो, उसके लिए आपको KPS पास होनी ज़रूरी है। KPS पास होने के साथ साथ में आपका प्रोविजनल लाइसेंस होना चाहिए। प्रोविजनल लाइसेंस के बेस पर आप इंटर्नशिप कर सकते हो। तो इंडिया से आप जब जाओगे तो आपकी इंटर्नशिप का अप्रूवल, इंटर्नशिप का फाइनलाइजेशन और आपकी प्रोविजनल लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें अगर है तो आप आराम से 407 में मूव कर सकते हो। यहाँ पे 2-3 चीज़ें होती है। जैसे आपकी 407 चल रही है
तो जैसे ख़त्म होने के बाद आप या तो 190 या तो 491 के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर आपके पॉइंट्स नहीं बन रहे हैं तो वो सिचुएशन में आप उसको स्टूडेंट वीज़ा में भी कन्वर्ट कर लो। वहाँ से आप स्टूडेंट वीज़ा कर लो, स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म करके आपके पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, देन यू कैन अप्लाई फॉर पीआर। और या तो आप एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड पे भी जा सकते हो। तो बहुत सारे वीज़ा सब कैटेगरीज है। तो 407 का जो मेन उसूल है वो ये है कि आपको लाइसेंस होना ज़रूरी है। स्टूडेंट वीज़ा इतने 13 इयर्स के गैप के बाद किंजल मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। KPS एग्ज़ाम के बारे में मैंने जो आपको बताया वो आप वेबसाइट्स पर से पढ़ सकते हो। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फ्री में दी गई है। अगर आपको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में पढ़ना है तो वो आप KPS वाला जो कोर्स देख लोगे तो दैट विल बी परफेक्टली ऑल राइट। उसमें सारी चीज़ें हैं, इंटर्न रिटर्न के बारे में भी है, इंटर्न ओरल के बारे में भी है, सब कुछ है। पूरे स्टेप्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। एमफार्म स्टूडेंट्स को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं है। अगर आपने रिसर्च किया है ऑस्ट्रेलिया में से तो थोड़ा सा बेनिफिट है। एमफार्म इन फार्मास्यूटिक्स में आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, पर वहाँ जाने के बाद आप इंडस्ट्री में भी मूव कर सकते हो, खास करके फूड इंडस्ट्री या तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में। हाँ, पी फार्म डी पोस्ट बेक्यूरेट है, अभी चल रहा है, तो आप बी फार्म के बेस पर KPS लिख सकते हो। आपकी फार्म डी ख़त्म होती है उससे पहले भी आप बी फार्मा के बेस पर आप लिख सकते हो। राजेंद्र, आप शायद समझ चुके होंगे कि आपके बी फार्म का क्वालिफिकेशन कंप्लीट है, तो ऑन बेस्ड अपॉन दैट यू कैन कंप्लीट योर डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन एंड कंप्लीट योर एग्जामिनेशन। आपका फार्म डी चलता रहेगा, उसका रिजल्ट आएगा, तब तक फार्म डी खत्म हो जाएगा, then you can migrate. Farm D will add more value for finding your internship. डिस्कशन KPS एग्ज़ाम के बारे में मेन जो पॉइंट्स है वो आप इंडिया से लिख सकते हो। साल में 3 बार ये एग्ज़ाम्स होती है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है। एग्ज़ाम थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, इसीलिए आपको प्रिपेयर्ड हो के लिखना चाहिए। $2000 की एग्ज़ाम की फ़ीस है, तो उससे अच्छा है कि आप 600 $650 जो फार्मा विजन इज़ चार्जिंग फॉर द एग्ज़ाम प्रिपरेशन, उसको स्पेंड करके यू कैन बिल्ड योर कॉन्फिडेंस टू पास द एग्ज़ाम। PCI रजिस्ट्रेशन इज़ मैंडेटरी फॉर KPS। यस, PCI का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ गुजरात का रजिस्ट्रेशन या तो आपके स्टेट का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप APC में, ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी काउंसिल में जब आप असेसमेंट करवाओगे तो आपको आपके कंट्री की डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन, मतलब आपकी कंट्री की लाइसेंस के डॉक्यूमेंट्स देना ज़रूरी है। ओके, यस, अभी कोटा में थोड़ा सा चेंज है। आप क्या करो कि अभी आपका नाम क्या है, इरफानुद्दीन, आप क्या करो अभी है ना, आप 407 के लिए ट्राई करो, क्योंकि 407 ग्रांट हो जाएगा तो दैट विल बी रियली गुड फॉर यू। ओके, आप एक बार पॉइंट के कैलकुलेशंस कर लीजिए। पंकज कुमार, क्या हो रहा है आपके? इफ़ यू वांट टू बिकम एन इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट, डू वी नीड टू गिव? नो, अगर आपको इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट बनना है तो आपको KPS नहीं देना है। आपको ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी काउंसिल के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप वेटासिस से असेसमेंट करवा के आपके इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट का असेसमेंट ले सकते हो। बट अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट में प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पे उतनी स्कोप्स नहीं है, तो आपको जो स्पॉन्सरशिप आनी चाहिए वो नहीं आएगी। As a fresh pharmacy graduate, I want to pursue masters in Australia but confused about the course. As I meet many consultant saying my degree is a doctor degree and my chances of getting admission in master would decrease my chances of getting student visa. So देखो वीज़ा ऑफिसर जो होते हैं
वो ऐसे नहीं देखते हैं कि आपने डॉक्टरेट किया है। ओके आपका जो प्रोग्राम है, अगर आपने फार्मडी किया है, दैट मीन्स you have done the integrated program. That is not a PhD level program. So the whatever program you are going to select, you have to provide a proper justification, and वो justification के base पर से that new program that you are going to study from Australia that add more value on your existing qualification, आपको 100% visa मिलेंगे. Don't worry about it. We have hundreds of case studies. जो फार्म डी के बच्चे हैं उसके वीज़ा ग्रांट हो चुके हैं। ओके तो टेंशन मत करो, आप जो भी प्रोग्राम पढ़ोगे उसका जस्टिफिकेशन देना ज़रूरी है। देखो इजी और हार्ड जैसा कोई वर्ड नहीं होता है के के लिए। के इज़ फोकस मोर ऑन द पेशेंट केयर की स्किल्स आप में कितनी है, और दे आर इवेल्युएटिंग योर पेशेंट स्केल स्किल्स। ओके तो पेशेंट केयर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो आप पास हो जाओगे। फार्माविजन का आज तक का जो रिकॉर्ड है वो ऑलमोस्ट 100% सक्सेस रेट है। ओके तो डोंट वरी अबाउट इट। इफ़ यू हैव एनी डाउट डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हेल्प यू टू पास द एग्ज़ाम। और जो कोचिंग है वो हाइब्रिड फॉर्मेट से चलता है। आपको रिकॉर्डेड वीडियो क्लास एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट्स में तो मिल ही जाएंगे, आप एक कम्युनिटी के साथ कनेक्ट हो जाओगे, और एवरी वीक वी डू हैव ए लाइव क्लासेस। ओके तो आप इस जो नेटवर्किंग कनेक्शन से प्रिपरेशन करोगे तो आप आपके घर बैठे लाइव क्लास को भी अटेंड कर सकते हो, आप रिकॉर्डेड वीडियोस को भी अटेंड कर सकते हो, तो आपकी सक्सेस रेट है वो सिग्निफिकेंटली हाई हो जाएगी। प्रीवियस स्टूडेंट्स दे आर ऑल्सो गोइंग टू शेयर देयर एक्सपीरियंस एंड यू कैन गेट सम इनसाइट्स फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस एज वेल। डू यू हैव टू गेट इनटू ऑस्ट्रेलिया बिफोर राइटिंग KPS एग्जाम? डिपेंड है, आप अगर KPS यस लिख सकते हो इंडिया से बी फार्मा के बेस पर, जाने से पहले आप लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बी फार्म कंप्लीट होने वाला है एंड रिटेल का एक्सपीरियंस 2 इयर्स का, तो क्या करना चाहिए? स्टूडेंट वीज़ा, देखो ये रिटेल का जो एक्सपीरियंस है वो एज ए फार्मेसी टेक्नीशियन हो सकता है। आप जब बी फार्मा पढ़ते हो तो दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज ए फार्मासिस्ट एक्सपीरियंस, और वो पार्ट टाइम एक्सपीरियंस होता है। तो कनाडा के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज़ परफेक्टली फाइन, यू कैन सबमिट योर फार्मेसी टेक्नीशियन एक्सपीरियंस। और ऑस्ट्रेलिया के लिए आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ है, अगर आपकी IT रिटर्न्स है, आप वेरीफाइड है सारी चीज़ें, तो उसको सबमिट कर सकते हो। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में पॉइंट्स मिलने की शुरुआत जो होती है वो 3 साल के फुल टाइम एक्सपीरियंस के बाद होती है। ओके तो पार्ट टाइम को डबल करोगे तब फुल टाइम में काउंट होगा। और कनाडा में क्या फ़ायदा होता है, 1 साल के वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर आपको पॉइंट्स मिलते हैं, इसीलिए। कैन वी गेट एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ा? एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ा मिल सकता है, इट्स पॉसिबल, पर आपको थोड़ा सा उसके लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे एक बार आपके पास कुछ सब्सटेंशियल कहने के लिए है कि आई हैव डन दिस थिंग्स, देन यू कैन प्रपोज टू द एम्प्लॉयर अबाउट गेटिंग द एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ा, पर ये पॉसिबल हो सकता है। फाइव 5.5 एंड की कोई भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती है वहाँ पे। 2 years gap and I don't have any experience yet the clearing KPS exam, can I apply for? No. आप 189 तो हो नहीं सकता है, 190 विदाउट एनी करना मुश्किल है। ओके और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, पर ये सारे क्वेश्चंस को लेना थोड़ा सा मुश्किल है। हाउ मेनी मंथ्स रिक्वायर्ड फॉर KPS कोचिंग? KPS कोचिंग के लिए आप ये सोच सकते हो कि अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड प्रिपरेशन करोगे तो 2 से 3 महीने में कर सकते हो। 3 महीने में अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा सा फुल टाइम वर्क करते हो तो साथ साथ में आप अगर करोगे तो 4 to 6 मंथ्स का प्लानिंग पकड़ के चलिए। और जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं उसको अभी से KPS को दिमाग में से हटा दो, पर वो फार्मेसी की पढ़ाई जैसे फार्माविजन में आप अगर KPS के लिए रजिस्टर करते हो तो उसमें से आप अप्लाइड क्लिनिकल फार्मेसी को पढ़ लो, आप फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस को कर लो, तो दैट इज़ हेल्पिंग यू टू बिल्ड योर गुड फाउंडेशन।
गुड अंडरस्टैंडिंग। जैसे ही आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे तब आप क्लिनिकल साइंस, फार्मास्यूटिकल साइंस, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करो, और साथ साथ में उसके बाद आप मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, ये सारी चीज़ों को करो। तो पढ़ाई जब आपकी चल रही है अभी, तो आप फाउंडेशन बिल्डिंग करो, और आप ऑलरेडी थोड़ी सी एज हो चुकी है, एक्सपीरियंस हो चुका है, एग्रेसिवली प्लान कर रहे हो, तो आप 2 से 3 महीने में KPS की प्रिपरेशन को कर सकते हो। इसमें से काफ़ी स्टूडेंट्स अपने एक्सपीरियंस शेयरिंग में बोल चुके हैं कि अगर हमने 2 से 3 महीने कंटिन्यूस वीडियो लेक्चर्स को अटेंड करके किया तो वी हैव पास द एग्ज़ाम। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे इसमें। ओके, मी एंड माई वाइफ बोथ आर फार्मासिस्ट एंड हैविंग ए गुड एक्सपीरियंस। ये जो मैंने आपको ध्रुव जोशी का बताया था ना, इज़ एग्जैक्टली सेम काइंड ऑफ सिचुएशंस। तो आप दोनों में से एक को मेन एप्लीकेंट बना दो और दूसरे को फैमिली मेम्बर्स बना दो। ओके, पॉइंट्स को कैलकुलेट कर लो, अगर एग्जैक्ट सेम पॉइंट्स होते हैं तो आप एक एप्लीकेंट बन जाओ, वाइफ को या स्पाउस को डिपेंडेंट बना दो। डेटा मैनेजमेंट में है स्कोप, पर उतना बड़ा स्कोप नहीं है डेटा मैनेजमेंट में। अगर आप डेटा मैनेजमेंट, बायो इन्फॉर्मेटिक्स या हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो तो डेफिनेटली यू हैव टू थिंक अबाउट द US एज अ बेस्ट ऑप्शन। ओके, फार्मासिस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट कोर्स अगर कोई पढ़ना है तो आपको पढ़ना चाहिए, या तो आप पढ़िए फूड साइंस टेक्नोलॉजी, या तो आप पढ़िए बायोटेक्नोलॉजी। Don't go with the core pharmacology or core pharmaceutics, because there are not many of the pharma company are available in Australia, so it is very difficult to find out the job. But when you are selecting the biotechnology, you have an option to work in agriculture biotechnology, in food biotechnology, in marine biotechnology, environmental biotechnology, genomic science, genomic analysis, बहुत सारे स्कोप्स खुल जाएंगे। और अगर आप फूड साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ोगे तो फूड साइंस टेक्नोलॉजी का सबसे बेहतरीन बेनिफिट ये है कि ऑस्ट्रेलिया इज़ ए फूड मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, क्योंकि वहाँ पे डेयरी भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर भी बड़ी इंडस्ट्री है, और मरीन फूड प्रोडक्ट्स भी बड़ी इंडस्ट्री है। तो आप सारे फार्मास्यूटिक्स के कॉन्सेप्ट, या तो आप सारे फार्मेसी के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके फूड साइंस में आप कैरियर बना सकते हो। ओके, लेकिन उसके लिए आप अच्छे कंसल्टेंट, जैसे फार्मा विजन में से बहुत सारे बच्चों को हमने भेजा पढ़ने के लिए फूड साइंस टेक्नोलॉजी। ओके, तो SOP बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है ऑस्ट्रेलिया के लिए, और ऐसे काफ़ी एग्जांपल्स है जो सेम दो फ्रेंड, एक ने दूसरे कंसल्टेंसी से किया है एप्लीकेशन और एक ने फार्मा विजन से किया। फार्मा विजन वाले स्टूडेंट्स का वीज़ा ग्रांट हो गया और उसके फ्रेंड का वीज़ा रिजेक्ट हुआ। उसका मतलब ये नहीं कि फार्मा विजन इज़ मेकिंग एनी चमत्कार करता है, ऐसा कुछ नहीं है, पर जो स्टेटमेंट है वो आपको जो बेहतर ढंग से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्यों एक्सप्रेस कर सकते हैं बेहतर ढंग से? बिकॉज ऑफ जैसे फार्मा विजन में वी आर ए फार्मासिस्ट, तो हम जानते हैं कि किस तरह से आपको प्रपोज करना चाहिए। ओके, पॉइंट कैलकुलेटर के चार्ट्स को हम भेज देंगे, आप खाली रिक्वेस्ट करके भेज देना मैसेज में, वी कैन सेंड इट टू दोज हु नीड इट। 407 के बाद वीज़ा नहीं मिला तो क्या करेंगे? ओके, 407 के बाद वीज़ा नहीं मिला तो वापस इंडिया ही आना पड़ेगा। अगर आप इस तरह से सोचोगे तो अगर 407 के बाद आप ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में हैं तो आपके पॉइंट्स कुछ कम हो रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, स्टूडेंट वीज़ा में कन्वर्ट कर लो। तो 407 में आप एक साल में जो कमाए हो वो स्टूडेंट वीज़ा में कन्वर्ट करोगे तो पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, आपकी लाइकिंग्स वहाँ पे रहने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएगी। ओके, तो 407 से आप विदाउट ऑन सॉरी वहाँ पे रह के ही आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। Okay, thank you very much, and sorry, actually it's not possible to provide the answers of all the students, but 90% of the answers has been given out, and hopefully this can help you to make your career related decisions. Okay, thank you very much, have a good time, great time, and if you need any kind of help you can directly communicate with us at our office,
और अगर आपको कोई रिस्पॉन्सेस चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट्स पर जा सकते हो। आप यहाँ से ये जो चैट बोट दिख रही है ना आपको, ये आप वेबसाइट्स पर से ये चैट बोट से आप चैट भी कर सकते हो, और वहाँ से आपको कुछ रिसोर्सेज भी अवेलेबल हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए ग्रेट टाइम। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। પેલો મેલ પ્રોવાઈડ કરવાનું પ્રોબ્લેમ એક થયો, શું થયો પ્રોબ્લેમ? લિમિટ પૂરી થઈ ગઈ. આપણો જે છોટોનો પ્લાન છે ને એમાં 100 પાર્ટિસિપન્ટ્સ જ આવી શકે. હા હા એ વાત તો સાચી હો. કો પાર્ટિસિપેટ એક સાથે જોઈન કરી શકે, એનાથી વધારે લોકો જોઈન ના કરી શકે. વેબિનાર ફૂલ કરીને આવી જાય. બરાબર, એટલે હવે તમે શું કરશો કે રેકોર્ડિંગ thank you પ્રોવાઈડ very કરી much દઈ for બધે. your interest to join this webinar, and it was an overwhelmed success, and the webinar room was full, and so many students didn't attend the webinar. ઓલું recording બંધ કરી દે. પ્રોવાઈડ કરી દઉં.